High drama taking place in the capital today through the day. As the number of MPs suspended in the Lok Sabha and in the Rajya Sabha has now increased, 92 MPs in total, 46 in each house is where the numbers stand as we speak. Remember, opposition MPs continue to demand that the Home Minister, the Prime Minister come into the Parliament and address the parliamentary security breach that took place a few days ago, in which two men entered into the Parliament with canisters shouting slogans against the government. Now we bring you more context on all of these developments. What you can see on your screens right now are visuals of those MPs who've been suspended outside in a protest. Piyush Goyal, Union Minister, with this response and reaction. Take a look. के बार बार अनुरोध पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी, वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया। और यही नहीं, कई माननीय सदस्य तो प्लेकार्ड लेके, जिसके बारे में माननीय स्पीकर के समक्ष और माननीय चेयरमैन के समक्ष सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ था कि कोई भी पार्टी, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी माननीय सदस्य कभी भी पटपाटी लेके, प्लेकार्ड लेके सदन के कार्यवाही को बिगाड़ेगा नहीं, सदन में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। उसके बावजूद आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को suspend karna pada. Okay, let's go over to my colleague Payal, who's with us right now to bring us more context. Payal has been bringing us all of these developments since the morning today. Payal, let me just start you off by asking, these are historic numbers, is that correct? Probably in the history of Parliament, not so many suspensions have happened on a single day, and today we've seen members being suspended from both the Lok Sabha as well as the Rajya Sabha. 33 from the Lok Sabha, 34 from the Rajya Sabha. In fact, 11 also included other ones against whom the privilege motion will be moved. That's the number that we're looking at. So 33 in Lok Sabha and 34 in the Rajya Sabha, along with 11. That makes it a total of 45 actions against MPs in the Rajya Sabha itself. Unprecedented scenarios as the opposition party MPs refuse to budge, refuse to relent from the stand that they are asking for a response coming in from the Home Minister, and they are basically saying that if they have to ask a government response on a serious issue like this, and if they are to be suspended, that so be it. They will be answerable to the people of this country and not to the government, which is muzzling their voices throughout, not just on the floor of the house but also outside as well. Okay, Payal, I think we've actually lost our connection with you. I'm going to go over right now to Abdul Khalik. He's a Congress MP who was in fact one of those who's been suspended, these numbers that we're talking about right now. He's with us right now. Let's go over to him. Mr. Khalik, sir, thank you for joining us here on CNN News 18. Thank you for taking out the time. Sir, first, your reaction to being suspended. देखिए, हमने क्या मांगा था? जो 13 दिसंबर के जो इंसिडेंट है, जो संसद सुरक्षा जो व्याहत हुआ, हमने यही मांगा था सरकार के, जो सरकार के गृह मंत्री सदन में आए। और उस दिन क्या हुआ था, कैसे वो इंट्रूडर आ पाया सदन में, कैसे वो गैस कैन लेके आ पाया, किसका गलती के लिए आ पाया, संसद क्यों सुरक्षित नहीं है, संसद जहां सुरक्षित नहीं है, देश भी सुरक्षित नहीं है, क्यों देश सुरक्षित नहीं है, इसका जवाब गृह मंत्री जी सदन में दे। हमारे यह सवाल का जवाब देना तो दूर की बात है, हमारे 13 सांसद को पहले ही निलंबित किया था। हमने ये जब जवाब मांगना, ये जो कंटिन्यू किया, हमने जब बोलते रहा ये अब जवाब दो, उन्होंने आज हमारे 31 सांसद को लोकसभा के, राज्यसभा में हमको सस्पेंड किया। और हमारे 3 सांसद इंक्लूडिंग मेरे को वो के जय कुमार, विजय बसंत और मेरे को वो हम लोग को तो प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया। अगर संसद में हमारे आवाज, विपक्ष के आवाज
नहीं सुनते हैं, हम तो उनको सुनाना होगा, क्योंकि हमारा आवाज देश का आवाज है। देश का आवाज तो हम सरकार को पहुंचाना होगा। गृह मंत्री जी सदन के बाहर कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी सदन के बाहर कुछ बोलते हैं, सदन में आके क्यों नहीं बोलते? हम चाहते हैं दोनों सदन में आए और सदन के पटल में वो अपना जवाब रखे, ये हम चाहते हैं। लेकिन सरकार इस सवाल से भाग रहा है। सरकार सदन में जवाब देने चाहे है, उनका मेजॉरिटी है, उनका संख्या गरिष्ठता है, इसलिए वो तानाशाही चला रहा है। हम ये तानाशाही के खिलाफ है और ये हमारे बात हम जनता तक ले जाना चाहता हूँ। खालिक जी मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहती हूँ, जो स्पीकर थे ओम प्रकाश बिरला जी, उन्होंने एक चिट्ठी लिखा। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि एक हाई पावर्ड कमेटी इसी चीज़ की जांच कर रही है, उस जांच के लिए पहले हम रुकते हैं। सो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि उनका ये कहना था कि पार्लियामेंट का सेशन तो मतलब होना ही होना है, आप अभी उसे रोक रहे हो। ना, वो जांच से हम इसलिए सेटिस्फाई नहीं हूँ, वो बनावटी जांच होगा, वो जांच का रिपोर्ट अच्छा नहीं होगा। हम चाहते हैं एक जो सदन के जो दोनों सदन का सारे हमारे एक्सपर्ट मेंबर है, कोई पुलिस से जुड़े है, कोई कानून से जुड़े है, विभिन्न क्षेत्रों का कोई एक्सपर्ट मेंबर है, सारे मेंबर को लेकर, ऑल पार्टी का मेंबर को लेकर एक जांच कमेटी बनाए। वो जांच कमेटी से सत्य निकाल आएगा। लेकिन जो अभी जो जांच कमेटी बनाया गया, इससे सत्य निकाल आएगा हमें नहीं लगता है, इसीलिए वो जांच हमें मंजूर नहीं है। और स्पीकर जी से हम गुजारिश करता हूँ, क्यों गृह मंत्री जी को क्यों ना बोले? गृह मंत्री जी आना चाहिए सदन में, आके जवाब देना चाहिए। खालिक जी एक और प्रश्न आपसे ये पूछना है हमें, क्या दिक्कत है? खालिक जी एक और प्रश्न ये पूछना है हमें आपसे कि उनका जब ये कहना है कि अभी 3-4 दिन ही है बाकी सेशन के, काम होने दो, उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? जब सुरक्षित नहीं है सदन में गैस का कैन लेके आ गया, आपने महुआ मित्र को क्यों सस्पेंड किया? आपने महुआ मित्र को इसलिए सस्पेंड किया, पासआउट शेयर किया था किसी के साथ। अभी प्रताप सिम्हा जो बीजेपी के सांसद, उन्होंने वो इंट्रूडर को पास दिया, जो इंट्रूडर गैस कैन लेके आया, उनको शोकॉज भी नहीं किया, उनको कोई एथिक्स कमेटी में या प्रिविलेज कमेटी में रेफर नहीं किया, कोई पूछताछ भी नहीं किया। वो सदन इसे चलते रहेगा और हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा हो सकता है? प्रताप सिम्हा को क्यों पूछताछ नहीं किया? उनको कोई कमेटी में क्यों रेफर नहीं किया? उनको क्यों जवाबदेही नहीं किया? आप सोचिए, अगर ये पास कोई विपक्ष का सांसद देते, अगर ये पास कोई मुसलमान सांसद देते, ये पास कोई ईसाई या सिख सांसद देते, तब हालत कैसा होने वाला था? जरा तो सोचिए, जब बोलने वाला था ये जिहादी आ गया, जब बोलने वाला था ये आतंकवाद हो गया, अभी पास बीजेपी का सांसद दिया, अभी सब चुपचाप है, अभी बोलना लगा हम तो अपना क्षेत्र का लोगों को देना होगा। अगर क्षेत्र का लोग आके संसद का सुरक्षा को क्षति करेगा, तब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे क्या? इसीलिए ये बात प्रताप सिम्हा को एक आखिरी प्रश्न है आपके लिए, उनका खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, यही बात हम उठा रहा हूँ। खालिक जी एक आखिरी प्रश्न है आपके लिए, आप हमें ये बताएंगे सर, अभी INDIA अलायंस का प्लान क्या है? 3-4 दिन ही बाकी हैं, प्रोटेस्ट हमने देख लिए, बट आगे 3-4 दिनों में हम क्या देखेंगे सर? और सस्पेंशन देखेंगे या कोई और प्लान है? देखिए, वो तो हमारा लीडरशिप डिसाइड करेगा, वो तो हमारा लीडरशिप डिसाइड करेगा। कल हमारा सारे विपक्ष का बैठक होगा, उसमें क्या सिद्धांत होगा, क्या डिसीजन होगा, फैसला होगा, वो तो बाद में बता पाएंगे, वो हमारा नेतृत्व तय करेगा। लेकिन हम चाहते हैं सरकार सदन में जवाब दे। सरकार जवाब क्यों नहीं देगा? सरकार जवाब से क्यों भागते हैं? सरकार सदन से क्यों भागते हैं? जब सदन चल रहा है, सबसे बेहतर फोरम तो पार्लियामेंट ही है, संसद ही है। वो संसद में गृह मंत्री जी क्यों नहीं आते हैं? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आते हैं? यही हमारा सवाल है। आप भी सरकार को पूछना चाहिए, आप संसद में क्यों जवाब देना नहीं चाहते? ओके, खालिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।